So Jain students, as in the previous lecture we were discussing about the various type of questions of exercise 5.2 till question number 6 we had already discussed. Now I'm going to explain the next question in the same sequence. That is question number 8. Seventh question will be done by you at your home. Now I'm going to explain the 8th question. Listen carefully and understand what I'm trying to make you understand. 8th question is exercise 5.2 question number 8. This is the second exercise of arithmetic progressions and I am going to explain question number 8. 8th question is an AP consists of 50 terms. 50 terms. So number of terms are 50, right? 50 terms of which third term is 12. Third term means T3. Third term is 12. And the last term is 106. Last term represented by L, 106. Find the 29th term. 29th term you have to find, right? So, what the question is given? 8th question of exercise 5.2. Total number of terms in the sequence is 50. Third term is 12. Last term is 106. And 29th term you need to find out, right? Now see that the last term is 106 and this last term is nth term, right? There are 50 terms in the sequence. टोटल कितने सीक्वेंस में टर्म्स हैं? 50 टर्म्स हैं और लास्ट टर्म जो है 106 है. देखिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था L इक्वल टू लास्ट टर्म nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ना, ये फॉर्मूला होता था nth टर्म फ्रॉम द लास्ट. और स्टार्टिंग से nth टर्म निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? an या फिर tn, बोथ आर सेम, राइट? an you can say an or tn, nth term of the sequence. A plus n minus 1 into t, correct? So last term of the sequence is 106 and this last term is nth term, right? Total number of term in the sequence is 50. So n is 50, right? It means that you can write this as Tn. ये कौन सा term होगा? nth term होगा. Why? Because there are 50 terms in the sequence and the last term is 106. So nth term will be 106. This will be the last term of the sequence, nth term. And total number of term in the sequence is 50. So it will be T50. 50th term is 106, right? So Tn 50 term equal to first term of the sequence is, हमें पता नहीं है कि first term क्या है, a plus कौन सा term है 50 minus 1 into d क्या है, कॉमन डिफरेंस भी हमें नहीं पता है. इट मीन्स कि अगर हम इसको लिखना चाहें a plus 49 into d, राइट? हमें सिर्फ इतनी चीजें पता है. देखिए यहाँ पर हमें दो unknowns given है ना, we have given two unknowns. So without knowing the unknowns you cannot find the value of 29th term, right? So first come to the next thing, that is T3. ये भी तो वैल्यू दी हुई है. What is T3? Third term of the sequence. It will be a plus 2d. मैंने बताया था कि कभी भी अगर हमें थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्वेश्चंस में मेंशन हो तो हमें पता होना चाहिए कि थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म विल बी a, सेकेंड टर्म a कम a प्लस d, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d एंड सो ऑन, राइट? So third term will be a plus 2d and third term is given what? 12. Third term is 12. This is equation first and this one is equation second. This is equation first and this one is equation second. Now subtract equation first minus second. Second को first से subtract करते हैं तो a will cancel out. A cancel हो जाएगा. 49 minus 2 it will become 47. So 47 d equal to 49 minus 2, 47.
47d equal to, subtract this 106 minus 12, 106 minus 12, right? इसको भी थोड़ा सा elaborate कर लीजिए. This a cancel, 49 minus 2d, 49d minus 2d. So 49d minus 2d equal to 106 minus 12, and a will cancel, right? So 49 minus 2 equal to 47d equal to, इसको भी subtract कर देते हैं, right? So 94, right? 94. So d is equal to 94 upon 47, right? It will become 2. Value of d is 2. अब d की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं. सपोज इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन सेकंड. पुट इन इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड में रखिए. तो देखिए जैसे ही हम d की वैल्यू 2 इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 12, बिकम 12. आप नीचे लिखिएगा, राइट? सो a प्लस 4 इक्वल टू 12. तो वैल्यू ऑफ a विल बिकम 8. वैल्यू ऑफ d is 2 and value of a is 8, right? I hope you are understanding that the value of d, how to find the value of d and a. Now you have to find the 29th term of the sequence. देखिए यहाँ पर अगर 29th term की बात करें तो क्या हो जाएगा, 29th term t29 equal to a plus 28d, है ना? जस्ट इसके एक पहले 28d. So a की वैल्यू 8, 28 into d की वैल्यू 2. So 8 plus 56, add कर लीजिए, 56 plus 8, 64. So the 29th term of the sequence will be 64. 29th term of the sequence will be 64. Correct? Note down all these things because you have to solve the rest portion, next question by your own. 9th question will be done by you, right, at your home, right? I'm going to explain the 10th question. Note down all these things. I'm going to tell you about the 10th question. 10th question हम discuss करते हैं. See the 10th question. 10th question आप देखिए क्या कहना चाह रहा है. In the 10th question is asking the 17th term. 9th question will be done by you at your home, right? Come to the 10th question. 10th one. The 17th term of an AP. 17th term, T17 or A17. You can also represent the nth term as AN or TN. It's up to you, right? 17th term of the AP exceed the 10th term by 7, है ना? तो 17th जो term है वो 10th term से 7 exceed कर रहा है, right? Find the common difference. You need to find the common difference. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा? The 17th term of an AP का 17th term जो है वो 10th term से exceed कर रहा है by 7. तो 17th term of the sequence is exceeding the 10th term by 7. You have to find the common difference. आपको common difference find out करना है. देखिए बहुत easy है इसको निकालना. क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना बहुत ही आसान है. फॉर्मूला अगर आपको पता है तो you can solve easily, but you need to find out, you have to learn the formulas, है ना? एक बार फॉर्मूला और फॉर्मूला भी लर्न नहीं करना है, आप प्रैक्टिस जितना करोगे फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा. तो क्वेश्चन क्या रहा था, 17th term is exceeding by 7 to 10th term. 10th term से 7 ज्यादा है 17th term. अब देखिए 17th term can be write as a plus 16d. a plus 16d, है ना? एक कम होता है इक्वल टू 10th टर्म a प्लस 9d प्लस 7 तो है ही.
10th टर्म क्या होगा a प्लस 9d, है ना। अगर देखना तो आप देख लीजिए कि 17th टर्म जो होता है वो क्या होता है a प्लस 16d। देखिए सॉल्व करते करते हम आपको इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाना चाहिए कि हम बार बार a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ना करें, है ना। अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि अगर हम 17th टर्म निकालने जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n की वैल्यू 17 माइनस 1 16d, है ना। तो डायरेक्ट हम 16d लिख सकते हैं। तो 17th टर्म ऑफ द सीक्वेंस विल बी इक्वल टू a प्लस 16d। और ऐसे भी आप याद कर लीजिए कि जो टर्म, जिस नंबर का टर्म पूछा जाता है उसके जस्ट पहले हम लोग d के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 17th टर्म पूछ रहा है तो a प्लस 16d, ठीक है। तो एक टर्म पहले हम लोग बात करेंगे 17th टर्म ना। तो यहाँ पर क्या है 17th टर्म इज एक्सीडिंग 10th टर्म बाई 7। जो 17th टर्म है वो 7 एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से। तो 17th टर्म इक्वल टू a प्लस 16d एंड 10th टर्म a प्लस 9d प्लस 7। नाउ सी दिस कैन बी राइट एज a विल कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि a जब लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस a हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, राइट। और 9d उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 करेंगे 7d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा था कि 17th टर्म ये होगा और 10th टर्म क्या होगा a प्लस 9d होगा, है ना। तो ये भी ऊपर आप नोट कर लीजिएगा ताकि ये क्लियर है कि व्हाट विल बी द 17th टर्म एंड व्हाट विल द 10th टर्म। 17th term of the sequence will be a plus 16d and 10th term will be a plus 9d, correct. And the question was asking that the 17th term of the sequence is 10 more than the 7 more than the 10th term. So 17th term is a plus 16d and 7 more means you will have to add 7 in the 10th term and the 10th term is a plus 9d. When we solve the equation, a will cancel and 9d will come in the left side, become 16d minus 9d equal to 7. So 7d equal to 7, d will be 1. So the value of d will be 1, correct. Now come to the next question. Now move to the next question, that is अभी हम लोगों ने 10th क्वेश्चन डिस्कस किया, come to the 12th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन will be done by you. Now come to the 12th question. 12th question is asking two APs have the same common difference. We have two AP, है ना हमारे पास दो APs हैं, AP1 and AP2, right? दो APs हैं which have same common difference, means इसका भी common difference वही होगा जो इसका common difference है, right? DE. The difference between their 100th term is 100. दोनों के 100th term, अगर इसका 100 टर्म होगा, a पहला AP है, ठीक है। तो a 100 अगर ये है तो इसको कैपिटल A 100 मान लेते हैं, ठीक है। सॉरी a 100 nth टर्म 100 टर्म और इसका 100 टर्म हम लोग a 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, दोनों के 100th टर्म के बीच का डिफरेंस मतलब a100 माइनस a100, है ना। 100 टर्म इज 100, दोनों के 100 टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 100. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, इनके 1000 टर्म, 1000 के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा। क्वेश्चन समझिए ध्यान से। वी हैव टू APs, है ना, दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, दो APs दिए हुए हैं, AP1 AP2, राइट। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है डी डी। दोनों के 100 टर्म जो होंगे, हम 100 टर्म को nth टर्म कैसे रिप्रेजेंट करते हैं an से, है ना। तो यहाँ पर हमने 100 टर्म को कैपिटल A100 से रिप्रेजेंट किया और यहाँ के 100 टर्म को स्मॉल a100 से रिप्रेजेंट किया। तो डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म ऑफ टू APs इज 100. यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म ऑफ द AP, है ना। देखिए ऐसे ही क्लियर होता है, ठीक है। मैंने भी इसके पहले डिस्कस भी किया था, है ना। ऐसे क्लियर है कि अगर दो सीक्वेंस है ना, जिसके कॉमन डिफरेंसेस इक्वल है, दो सीक्वेंस है जिनके की कॉमन डिफरेंसेस इक्वल हैं,
ठीक है। तो उनके 100 टर्म का जो मतलब जो डिफरेंस आएगा वही 1000 टर्म का भी डिफरेंस आएगा, राइट। इट मींस द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म विल बी 100। आपको पहले से पता होना चाहिए, बट यू हैव टू सॉल्व दिस, है ना, इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म की बात करें, है ना, इधर करते हैं डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म, तो देखिए इसका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट मे बी डिफरेंट फ्रॉम दिस। इसका फर्स्ट टर्म हम a मान लेते हैं और इसका फर्स्ट टर्म हम a मान लेते हैं, स्मॉल a, राइट। The first term of the sequence AP1 is capital A and the AP2 is small a, right? The 100 term of first, है ना, A100 क्या आएगा, A plus 100 minus 1 into D. It means A plus 99D. आप डायरेक्टली लिख सकते थे A plus 99D, है ना। 100 term of first AP is capital A is the first term, 99D, and 100 term of second AP, दूसरा जो AP है AP2 उसका 100 term जो है that will be A, right? First term is A, sorry small a, because इसका मैंने first term क्या माना है A, small a, right? तो देखिए कॉमन डिफरेंस इक्वल दिया हुआ है, दोनों का dd होगा, लेकिन फर्स्ट टर्म में भी डिफरेंट, है ना, फर्स्ट टर्म डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसका फर्स्ट टर्म कैपिटल A माना है, इसका फर्स्ट टर्म स्मॉल a माना है, राइट। सो 100 term A100 small a100 equal to A plus 99, कॉमन डिफरेंस तो सेम है तो D ही होगा, करेक्ट है, करेक्ट। नाउ सी दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस वन इज इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट माइनस सेकंड कर दें तो दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस आ जाएगा। इट मींस A100 माइनस स्मॉल a100 इक्वल टू A माइनस A, राइट। और ये 99D कैंसिल हो जाएगा, A माइनस A यहाँ पर। अब देखिए 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। इट मीन दिस वैल्यू विल बी 100, A माइनस A इक्वल टू 100। अब देखिए अगर आपको 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है ना, 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है तो A1000 माइनस स्मॉल a1000, है ना। तो देखिए 1000 टर्म ऑफ फर्स्ट AP, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखिए A प्लस 999D होगा, फर्स्ट टर्म इसका कैपिटल A हो गया, कॉमन डिफरेंस D ही रहेगा क्योंकि 1000 टर्म है, उसके पहले 999D माइनस ब्रैकेट में 1000 टर्म और सेकेंड AP A प्लस 999D, है ना, 1000 टर्म ऑफ द सेकेंड AP, तो A प्लस 999D ब्रैकेट ओपन अगर करें तो A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D, ये 999D दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और A माइनस A बचेगा। A माइनस A की वैल्यू क्या थी, 100, so this will be 100. It means that the common the difference of the 1000 term of 2AP, if 100 term difference is given 100, so 1000 term का भी difference क्या आएगा, 100 ही आएगा, correct? So this is the 12th question. You must have to solve in your class work copy, so you can solve the next question. देखिए 13th question यहाँ पर 12 मैंने करा दिया है, 13th question आपको खुद से करना है, ठीक है। हम solve करने जा रहे हैं 14th question. 14th question is how many multiple of 4 lies between 10 and 250, right? देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे मैं 13 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनसॉल्व्ड बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एनसीईआरटी की सारी क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। So you will have to solve all the questions. If there is any doubt, you can ask. I can make a query resolving videos for you all, right? तो एक query resolving videos भी हम बना लेंगे, but you need to share the queries in your group so that I can understand what is the problem you are facing in arithmetic progressions, right? So if you are facing some problem in arithmetic progression, I will make short all the queries of yours by making some videos, right? So I'm going to explain the next question, that is 14th, right? And 13th question will be done by you at your home. Come to the 14th question. 14th question is how many multiples of 4 lie between 10 and 240? Question was how many multiples of
4, right? lie between 10 and 250. 10 and 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। पहली बात हमको ये समझना पड़ेगा कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। 4 के मल्टीपल्स होते क्या हैं? जस्ट रीड आउट द टेबल ऑफ 4, है ना। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24. These all are the and so on. These all are the multiples of 4. बट बात कर रहे हैं 10 से 250 के बीच में कौन कौन से 4 के मल्टीपल होंगे? तो देखिए 4 10 से छोटा है, इसलिए इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। 8 भी 10 से छोटा है, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। 4 8 12 will lie between 10 and 250. So the sequence will start with 12, है ना। 12 से sequence स्टार्ट होगा। 4 8 4 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और ये सीक्वेंस कहां तक जाएगा? देखिए 250 जो है वो इन दोनों नंबर के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। 10 से लेके 250 तक लाई करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 250 से जस्ट छोटा, है ना, कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल हो? तो देखिए 250 है, इसको 4 से डिविजिबल बनाना है। कैसे बनाएंगे? 4 6 जा 24, रिमाइंडर विल बी 1, 0 उतारेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर विल बी 2, राइट। तो अगर ये रिमाइंडर 250 से माइनस कर दिया जाए, जो रिमाइंडर आया है उसको 250 से अगर माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा? 248 बचेगा। इट मीन्स दैट इन द सेम सीक्वेंस द लास्ट टर्म विल बी 248। लास्ट टर्म क्या होगा? 248, जो कि 4 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, राइट। इट मीन्स दैट 248 इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। I think you all have cleared that how to find the sequence of the given expression, है ना। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे, तो 4 के मल्टीपल 10 और 250 के बीच में अगर स्टार्ट करने की बात करें तो पहला मल्टीपल जो होगा वो 12 होगा, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है, वो 4 का मल्टीपल नहीं है। 12 आता है, वो 4 का मल्टीपल है। फिर 12, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24 एंड सो ऑन। एंड लास्ट टर्म क्या होगा? 250 है यहाँ पर, ठीक है। 250 से पहले कौन सा ऐसा टर्म है जो कि डिविजिबल है 4 से? तो मैंने 250 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर 2 बच रहा है। इट मींस अगर 250 को 4 से डिविजिबल बनाना है तो इसमें रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा, इट बिकम 248। इट मींस लास्ट टर्म विल बी 248। सेम थिंग विल बी हैपन विद फैक्टर्स, है ना। फैक्टर में भी हम लोग क्या करते हैं? चेक करने के लिए डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल अलग चीज होती है, फैक्टर अलग चीज होती है। लेकिन चेक करने के लिए क्या मल्टीपल है कि नहीं, तो अगर मुझे पता करना हो कि क्या 248 जो है उसका फैक्टर 4 होगा, तो 248 को 4 कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, राइट। अगर कर दिया तो होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो देखिए आपको निकालना क्या था? हाउ मेनी मल्टीपल विल लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इस सीक्वेंस बन गया, है ना। सीक्वेंस का ये nth टर्म है, दिस इज nth टर्म, राइट। ये n नंबर पे लाई करेगा, nth नंबर पे लाई करेगा, राइट। अब देखिए अगर यही n की वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, है ना। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म इस सीक्वेंस का लास्ट टर्म कौन सा है? 248। तो 248 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 इज 12 प्लस कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? जो n होगा कौन से नंबर पे, अगर ये पता चल जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें टोटल टर्म कितने आए। अगर ये पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू n, है ना। nth नंबर पर ये है। बट इफ यू हैव टू फाइंड आउट दैट ऑन विच नंबर इट लाई, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड दैट नंबर विल बी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। वही जो n की वैल्यू होगी वो डिफाइन करेगा कि इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। सो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 16 माइनस 2 12, 16 माइनस 12 विल बी 4, है ना। तो d की वैल्यू 4, यहाँ पे 4, करेक्ट। इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 248 माइनस 12 इक्वल टू 4n माइनस 1, 4 इंटू n माइनस 1। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6
3, 236 इक्वल टू 4 n माइनस 1 डिवाइड कर दीजिए, तो n माइनस 1 इक्वल टू 236 अपॉन 4 विल बी 4 5 या 20 4 9 या 36, n की वैल्यू 59 प्लस 1 दैट विल बी 60, राइट। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। तो n की वैल्यू ही हमें बता रही है कि टोटल नंबर ऑफ, यहां पे लिखना भी पड़ेगा आप लोगों को, देखिए so total numbers lie between 4 and 10, 4 and 250, sorry, 4 and 250 dv multiple of total number lie between 4 and 10 and 250, 10 and 250, that is multiple of 4 is 60, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो कि 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे वो कितने होंगे, 60 टर्म्स होंगे टोटल, करेक्ट। सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, राइट। This was a 14th question, 15th question will be done by you at your home, है ना। 15th question आप लोग करोगे, ठीक है। बाकी इसके आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, उसके बाद सम ऑफ एन टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।